dear students, how are you all? So let's start today our computer subject and see on page 2121 of your computer textbook, lesson number 3, more on Windows 7. So today we are going to learn about Windows. Okay. So first of all, a computer system consists of hardware and software. Okay. Without hardware and software, computer is nothing. Now what is hardware and what is software, we are going to learn more. And already you know hardware means you can say the thing you can touch. Okay, already it is from the word clear, hardware, like keyboard, CPU, mouse. Okay, so these are known as hardware. And software, you cannot touch that part already in the computer, are known as software. To manage this, it needs an operating system. An operating system is a system software that makes the other program or application of a computer run. Without operating system, computer also cannot run. Okay, device we need, we attach each and every device with the help of cable wire. Okay, sorry, electric wire or either the cable. But to work goes on, you need operating system. Okay, so MS Windows is an operating system that is commonly used worldwide. Nowadays you see mostly people use MS Windows. Okay, now what is full form of MS? That is Microsoft Windows. MS Windows has many versions. Some of the popular versions are Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8. In this lesson we are going to learn about Windows 7. Okay, so here a few pictures are given on page 21 how it looks. Okay, MS Windows 98, this way it shows on the screen when we on our monitor. MS Windows XP, this way, and below this MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows 8. Okay, so from this picture it is clear for you that which window you are using. Okay, here common features of Windows. Windows is very popular on PCs, that is personal computers, because of its many features. Let's learn about some of them. First one, Windows use WYSIWYG, which stands for, full form of this word is what you see is what you get. Okay, जो आप देख रहे हो वो आपको मिलता है, ये word का full form. This suggests that whatever appears on the monitor, the same will be on the printout. जो आपने वर्क किया है, प्रोसेस जो आया है वो मॉनिटर पे आपको एज ए रिज़ल्ट दिखाता है और वही रिज़ल्ट जो है एज ए प्रिंट आउट आपको मिलता है. ऐसे नहीं कि मॉनिटर पे दिखा कुछ और प्रिंट आउट कुछ और मिला. जैसे एडवर्टीज़मेंट में होता है ना, दिखता कुछ और है और जब आप मंगवाते हो ऑनलाइन तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है जो अंदर से कुछ और होता है. ओके, यहाँ प्रोडक्ट का जितना नाम है पर अंदर से कुछ इतना अच्छा नहीं होता है. तो सेम वे यहाँ पे क्या है, अपोजिट है. जो देखा ऐड में, जैसे जो मॉनिटर में देखा वही प्रिंट आउट में ऐसे. तो यहाँ पे ऑपोजिट. सेकंड पॉइंट, विंडो इज़ कॉल्ड ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, शॉर्ट फॉर्म GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज ग्राफिक्स आर यूज्ड इन इट टू कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर. ओके, कुछ ग्राफ्स भी जो है हम लोग यूज़ करते बाय द यूज़र, जो कंप्यूटर है उसके हेल्प से हम लोग वर्क कर सकते हैं. पॉइंट, इट इज़ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ ईजी टू हैंडल एंड ऑपरेट. वी कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बाय क्लिकिंग द माउस बटन. ये इतना ईजी है कि आप वर्क कर सकते हो और माउस से क्लिक करके आप जो एक्शन देखना चाहते हो इससे क्या होता है तो वो आप देख सकते हो. जहाँ पे यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन दिया है आपके बुक में, क्लियर. और ये सब क्या है, ये पिक्चर का मीन क्या है, ये बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन. नंबर 4, विंडोज़ यूज़ पिक्चर्स लाइक आइकन्स. ये सारे आइकन है. वी कैन
वर्क ऑन इट बाय जस्ट क्लिकिंग दिस आइकॉन। आपको कौन से आइकन पे वर्क करना है, उस आइकन पे क्लिक करना है। सपोज पेंट प्रोग्राम है तो पेंट वाला आइकन पे आपको क्लिक करना है, वो ओपन होगा। वी कैन वर्क इट ऑन बाय जस्ट क्लिकिंग दिस आइकन। दिस फीचर्स ऑफ विंडो मेक इट ईजी टू वर्क। तो ये हमारे वर्क करने के लिए बहुत भी ईजी बन जाता है, क्योंकि आइकन बाहर है और आइकन से हमें पता भी चल जाता है कि हमें क्या वर्क करना है और हम वर्क कर सकते हैं। विंडोज़ हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स एट ए टाइम। हमें बहुत सारा वर्क करने के लिए ये हेल्पफुल है। ये नहीं कि एक ही आप वर्क कर सकते हो, 2 से 3 वर्क आप कर सकते हो एक साथ। बट आपको माइंड में रखना है कि आप कौन से प्रोग्राम आपने ओपन किया है और कौन सा आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चला कि हमने कितने प्रोग्राम ऑन करके रखे, तो यहाँ पे टास्क बार में आपको वो शो होगा। विंडो हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स एट ए टाइम। नंबर 5। Number 6, window has a number of programs like calculator, paint, wordpad and notepad। तो ये सारे प्रोग्राम हैं। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हो, ओके, इसको छोड़ दो एक साइड, आपको कैलकुलेटिंग में पेंटिंग कर रहे हो, वर्डपैड पे आप कुछ लिख रहे हो, यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर रहे हो, यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, यहाँ पे भी कुछ लिख रहे हो, लेकिन इससे ज़्यादा और आप अच्छा सा बना सकते हो वर्डपैड में। तो आप ये 2 वर्क सपोज कर रहे हो तो दोनों यहाँ पे आपको दिखेंगे कि आप इसमें आपका फाइल ओपन है। नंबर 7, वी कैन मल्टीटास्क इन विंडोज़। आ गया मल्टीटास्क, यानी एक साथ आप बहुत सारा वर्क कर सकते हो, ये नहीं एक ही टाइम पे एक। तो कंप्यूटर इतना हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल प्लेइंग अ गेम ऑन ए कंप्यूटर वी कैन ऑल्सो लिसन टू सॉन्ग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे इसे कहा है मल्टी टैलेंट जैसे कहते हैं। तो आप गेम प्ले भी कर रहे हो, गाना भी सुन सकते हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं मल्टीटास्क इन विंडोज़। यहाँ पे पिक्चर दिया है, आप गेम भी प्ले कर रहे हो, सॉन्ग भी सुन रहे हो, ठीक है। नाउ वर्किंग विथ विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 से उसके साथ हम वर्क कैसे कर सकते हैं, हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू अवर वर्क, ओके। व्हेन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर द विंडोज़ लॉगिन स्क्रीन अपीयर्स। ओके, लॉगिन यानी आपको अंदर जाना है तो कंप्यूटर के अंदर नहीं जाना है, लेकिन वो प्रोग्राम आपको ऑन करना है। तो लॉगिन जिससे फिर आपका मॉनिटर वो ऑन होगा और आप अपना प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन का मीन स्क्रीन अपीयर्स, देन वी क्लिक ऑन द यूज़र ID एंड एंटर अवर पासवर्ड। लॉगिन का मतलब जैसे कुछ बार ऐसा भी होता है ना कि हम लोग अपना मोबाइल है वो लॉक करते हैं, तो हम कोई पासवर्ड रखते हैं। फॉर एग्जांपल फिंगर टच से ओपन करना है तो खुद की फिंगर के अलावा और कोई ओपन नहीं कर सकता मॉनिटर स्क्रीन। एंड सेकेंड थिंग, हम लोग कुछ कोड भी रखते हैं, सपोज 1 2 3 या 4 8 9 या कोई एक ऐसा इनिशियल लेटर डॉट डॉट से ज्वाइन करते हुए तो वो ओपन होता है। तो सेम वे हमें लॉगिन करने के लिए एक यूज़र ID जो होता है उसने कोई नेम रखा है, ओके, और फिर उसने अपना पासवर्ड भी डाला है, तो वो की है लेकिन वो सही की और लॉक है तो वो ऑन होगा, नहीं तो नहीं, सिर्फ कंप्यूटर ऑन होगा लेकिन आप वो वर्क नहीं कर सकते। वी सी अ कलरफुल बैकग्राउंड हैविंग मैनी पिक्चर्स, दिस इज़ कॉल्ड अ डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप है जहाँ पे आप आइकन देख रहे हो, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड पिक्चर डेस्कटॉप। दिस आर 4 important थिंग्स दैट अपीयर्स ऑन अ डेस्कटॉप। दे आर वॉलपेपर, ये वॉलपेपर है, ये आइकन है, स्क्रीन सेवर, आइकन्स एंड टास्क बार। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो नीचे वाली में भी है, लेकिन यहाँ से भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। ये है टास्क बार, आपने कौन से प्रोग्राम ऑन किए हैं या कौन सा आप वर्क करे हो तो दिखेगा। देखो यहाँ पे भी एरो बनाया, यहाँ से लेके ये टास्क बार, ठीक है। ये सारे स्मॉल स्क्वायर्स रेक्टेंगल देख रहे हो, वो आइकन नेम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। और ये जैसे 4 छोटे छोटे विंडो 4 स्क्वायर, ये है वॉलपेपर, क्लियर। तो ये हो गया आपका डेस्कटॉप के अंदर ये 3 मेन थिंग्स, ओके। नाउ वी सी ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23। पेज 23, व्हाट इज़ वॉलपेपर। वॉलपेपर तो चलो समझ में आ गया कि इसको वॉलपेपर, लेकिन वॉलपेपर पता कैसे चल रहा है, तो इसमें और डिपेंड है। वॉलपेपर इज़ द बैकग्राउंड पिक्चर्स डिस्प्लेड ऑन अ डेस्कटॉप, इट कैन बी चेंज्ड ईजीली। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए, जैसे ये आइकन है, बैकग्राउंड चेंज किया है, यहाँ पे आइकन है, बैकग्राउंड ऐसा। लेकिन एक बात माइंड में रखो, बैकग्राउंड ऐसा दो कि आपको आइकन भी दिखे, फिर ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव हो कि आपको आइकन का भी पता मुश्किल से चले, ठीक है। और यहाँ पे भी एक दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज द वेरियस स्टेप्स टू चेंज अ वॉलपेपर आर लिस्टेड बिलो। अब वॉलपेपर हम कैसे चेंज करें, इसमें आपको कुछ स्टेप्स दिए हैं। फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं।
क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल, ये दिमाग में रखो, कंट्रोल पैनल पे आपको क्लिक करना है स्टार्ट के बाद। द कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर्स, तो वो क्लिक करते हो तो क्लिक ऑन अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन कैटेगरी, तो वहाँ पे आपको क्लिक करने से क्या होगा, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन विंडोज अपीयर। सिलेक्ट द बैकग्राउंड पिक्चर फ्रॉम द पिक्चर्स लोकेशन लिस्ट, जहाँ पे आप क्लिक करोगे ये ओपन होगा, वहाँ पे एक लिस्ट होगी पिक्चर्स का, आपको कौन सा पसंद है वो आप सिलेक्ट करो, फिर उसको चेंज करना है, क्लिक ऑन सेव चेंजेस, यू विल रिटर्न टू द, फिर आप वापस यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेप दिया है, स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, सेकंड स्टेप, थर्ड पॉइंट यहाँ पे अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, यहाँ पे क्लिक करना है, फोर्थ पॉइंट आपको पिक्चर सिलेक्ट करना है, और ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट जो है आपको दिखेगा कि ये ऐसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है, और आपको जो पसंद है अगर चेंजेस करके तो फिर आप वो चेंज करके यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू के तौर पे दिखेगा, चेंज कर दो, सेव चेंजेस, फिर जब आप बैक जाते हो तो आपको बैकग्राउंड चेंज दिखेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऐसा था, चेंज करने के बाद फिर ऐसा दिखेगा। ओके, सो हियर वी एंड आवर टुडेज लेसन एंड नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।